यहाँ स्क्रीन को नहीं आनी चाहिए। वो क्या नीचे वो भी हाँ ठीक है। सही है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी सर, स्टार्ट कर लें जी। सर। Recording in Okay. progress. ये तो 200 अबव जाने चाहिए। Recording stopped. जी सर, साथ ताकि, साथ आ रहे हैं सर। सर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है सर। इकट्ठे सर आपकी आवाज डिस्टॉर्शन आ रही है, काइंडली बता दें सर। क्योंकि पहले डू नॉट नो मी। सर ज्वाइन कर रहे हैं, वो 102 हो गए हैं तकरीबन। सर आवाज आ रही है? जी 111 minutes more। ये सिग्नल का प्रॉब्लम ना करेगा। बता जनाब जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई है सर। सर स्टार्ट कर ले। जी अभी भी बहुत थोड़े लोग। ओके सर। Recording in progress. Recording टोटल stopped. कितने Recording in कैंडिडेट? progress. जी ये पेफा हेडक्वार्टर बताएगा कि हाउ मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस Recording सेशन। stopped. सर 157 हो गए हैं सर। नहीं पिछले लेक्चर में तो 222 तक गए थे। जी जी सर, वो साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं सर। आप स्टार्ट कर लें सर, 2-3 मिनट होगा सर।
ठीक है। अच्छा, मैं एक्चुअली ये चाह रहा था कि मैं इन्हें अपना इंट्रोडक्शन तो करा दूं ताकि इन्हें पता तो हो कि हु इज देयर रिसोर्स पर्सन. They are just treating me as a routine, क्या कहते हैं इसको, resource person. They जी should जी सर। actually know who is addressing to the participants in this lecture. और ये नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी यहाँ था कि जी हमें अपना इंट्रोडक्शन कराएं, लेकिन उस वक्त पार्टिसिपेंट्स जो थे वो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव लेफ्ट द मीटिंग and I did not complete my introduction to all the candidates who are appearing in this Zoom meeting. Okay. So let's have a chat first. क्या कहते हैं लोग? सर इंट्रोडक्शन करवा दें। अच्छा, 180 चलें. स्टूडेंट हो गए सर। जी जी, ठीक हो गया. Recording in progress. See, respectable participants from all over Pakistan, let me introduce myself to all of you before the start of the lecture. My name is Iftikhar, as it displayed on the screen sharing. As far as my qualification is concerned, I completed my education from Government College Lahore, a prestigious institution in Pakistan. Then I appeared in the commercial management exam and I was selected there and served for some time in 1984. Then afterwards I appeared in CSS and finally elevated and landed in Pakistan Audit and Account Service, जो कि AGP का department है. I served in a variety of federal as well as provincial organizations in Pakistan, starting from Pakistan Military Accounts, AG Office Lahore, Civil Audit, Pakistan Railways, WAPDA, then Foreign Audit Office, and later on, I served also as Director of Finance in a public sector university in Lahore. Then Director Audit in Works Audit Lahore. Then I was elevated in grade 20 and served as Joint Secretary, Chief Finance and Accounts Officer in the Federal Secretariat. And then transferred from that organization as Director General Audit, Provincial Works, Lahore. Nowadays, my business is to address the different participants of the different departments, in which I am a consultant in the provincial government of Punjab to train the participants in my capacity in the field of public financial management. Apart from this consultancy, training consultancy, I am also resource person of the engineering academy, जो कि पाकिस्तान के engineers को train करती है. My training to the participants starts from their basic induction in grade 17, then their promotion in grade 18, grade 19, and even grade 20. PEFA participants are the newly assignment in which grade 16 people are the participants. I think
these people will also have a room for their resource person in the PIFA Center, Karachi. As I am teaching in Lahore PIFA Center for the last 2 years, people in Karachi, Islamabad, and throughout Pakistan who are attached with the PIFA, they don't know me, but I am the resource person of the PIFA Lahore sub-center. With this brief introduction, I finish this introduction here and start my lectures. In my previous lecture, I gave you about the what you say, the brief outline of the business communication and report writing. One thing more, my areas of interest are public finance, public financial management, and business communication, in which I'm addressing to you people. I do hope that now I am familiar with you people and I am a part of your family to address you people on the subject of business communication and report writing. In my earlier lectures, I gave some sort of different broad outlines and concepts that defined my area of study. Today, my lecture is, it is the second lecture in which I will share my knowledge and experience with all of you. Respectful participant, one thing I would like to clear here that you people are not allowed to ask any question as per direction of the PIFA head office Karachi. Please keep in touch with questions, write down on the paper and ask me at the end. 15-20 minute हमारे पास होंगे in which I'll answer your questions so that maximum dissemination of knowledge, the contents of the lecture are transmitted and passed on to you people. Another salient feature of today's lecture is that I would like to get information from the participants that in which language they are comfortable to be addressed. It is English, it is Urdu. The choice is yours. Whatever you like, I'll follow your advice, your suggestion. Please, PIFA head office may intervene how to address these participants because these people belong to the whole of Pakistan and there might be Recording some stopped. difficulty in understanding and comprehending the concepts of the lecture that I am delivering. Recording here. in progress. सर 213 हो गए, 213 स्टूडेंट्स जी, ज्वाइन कर ठीक हो लिए। गया। जी सर। ठीक हो गया। अब मैं ये इनसे पूछना चाह रहा था कि ये लेक्चर में कौन सी जबान को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उर्दू इज अवेलेबल, इंग्लिश इज अवेलेबल, सिंधी मुझे आती नहीं है और ना ही मुझे कोई बलोची आती है। तो PIFA सेंटर में गाइड मी इन दिस मैटर so that my lecture may be useful to all these participants. Recording stopped. सर जो आपको ज्यादा इजी लगे मिक्स कर लें, उर्दू ज्यादा अच्छा रहेगा सर। इसमें मैं आप मुझे लैंग्वेज Okay. बता दें, हम इसको पोल चेक कर लेते हैं, इसी यहीं पे क्रिएट हो जाएगा ताकि वो सब अपने व्यूज दे देंगे। आप मुझे बता दें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करनी है, मैं पोल करवा लेता हूँ।
नहीं, मैं तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ। मैंने Okay. कहा कि कहीं सिंधी कराची वाले जो हैं वो दे वुड बी कंफर्टेबल with either language, Sindhi या बलोची या something else that is being spoken throughout Pakistan. सर चैट में ज्यादातर इंग्लिश और उर्दू में जरा प्रेफरेंस है। चैट में यही इंग्लिश और उर्दू दोनों चलेंगे। चल मिक्स कर लेते हैं। ओके ओके respectable participants, today's lecture is lecture Recording in number 2. progress. Lecture number 2, in which I'll share my knowledge and experience on the topic of types of the communication and allied matters that are connected towards today's screen sharing about the BCRW subject. तो आज मैं आपके साथ पार्टिसिपेंट्स जो शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि सब टॉपिक है आपके लेक्चर नंबर 2 का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, के कम्युनिकेशन की कितनी किस्में हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं आज की बिजनेस की दुनिया में, आज की पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन के अंदर, and in our homes, in our groups of friends, relatives, and so many other people जो हैं। तो experts have divided the communication types into two things. That is, number one is internal communication, or number two is external communication. When we define the internal communication, we see that communication between those that work within the organization, such as team, colleagues, management, and other members of the staff. दो तरह के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन की मैंने अर्ज किया आपसे कि ये दो तरह के आपके टीम कोलीग्स जो कि आपके बहुत ही करीब लोग होते हैं, वहाँ जो आप गुफ्तगू करते हैं, एक अदारे के अंदर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप का एक क्लोज सर्किट होता है वहाँ, और अदर मेंबर्स दैट आर योर कोलीग्स इन योर ऑफिस, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाती है। The second part of the types of the communication is the external communication. External communication, when we define it, it is the communication with those people, with those from outside the organization, such as customers, suppliers, the press lobby groups, and the government and banks, and so many others groups to which you communicate for your business purposes. तो इस एंगल से जब हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन को आप ब्रॉडली इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में डिवाइड करके तो आप अपना पर्पस माफी ज़मीर जो है यू कम्युनिकेट टू द अदर पीपल। एज वी आर सिटिंग हियर in a webinar, we are a team. We are colleagues who are working together, who are sitting together, who are sharing interests with each other. It is an internal communication. When I'll communicate with other things, or you will communicate with other people outside the organization, this is a PIFA organization. When we will communicate with other organizations outside the PIFA, then it would be called an external communication. By virtue of these two types, we come across different types of experiences. We are more comfortable in the internal communication because we know each other, we know our colleagues, we know our management, senior and junior levels.
and staff members, and we are confident in communicating with these people. When we communicate externally, then we have some sort of, I would say, a difficulty, or you will have to follow the prescribed pattern or channel of communication that we will follow later on during our lectures. Our second topic here is direction of communication जो है वो किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती है. अब we have been confining ourselves in the internal communication. इसके अंदर जो है वो डायरेक्शन क्या फॉलो नॉर्मली जो है वो की जाती है. The concept of direction of communication can be applied to situations where some kind of hierarchy or structure exists. This might be as equally as an element within a family of social groups as well as the business environment. Following are the directions of communication. Experts have given 3 types of directions of the communication that are prevalent in our organizations. Am I audible? If head office is requested to tell me. If head office. Recording stopped. जी सर. Am I मेरी आवाज सही आ रही है लोगों तक, आप लोगों तक? जी जी सर, ठीक आ रही है सर. Okay. Recording in progress. तो डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे मैं शेयर कर रहा था, तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ये 3 किस्म की डायरेक्शंस जो हैं ये एक्सपर्ट्स ने कम्युनिकेशन के लिए दिए हैं. आगे हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन को डिटेल में हम देखते हैं कि हाउ दे वर्क एंड हाउ दे ऑपरेट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली between the groups and the colleagues and whatever people are involved are the stakeholders in an organization. Vertical जो है communication, उसके अंदर जब हम डिटेल में देखते हैं तो managers communicate downward when issuing instructions and briefing to their teams. People who are serving, they know that the higher-ups in the organization, किसी भी महकमे के अंदर अगर डीजी हेड कर रहे हैं तो वो जब कम्युनिकेट डाउनवर्ड करते हैं, फिर नीचे से इंस्ट्रक्शंस ऊपर को जाती हैं, तो ये वर्टिकल की फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्म कंसिडर की जाती है. Employees would communicate upward and reporting back to their managers with updates and results on the work performed. Whenever the top hierarchy communicate with the juniors, तो वो directions issue करते हैं, instructions देते हैं. आपके दफ्तरों के अंदर आपके जो बॉस बैठे हैं वो जब भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे. वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी, वर्टिकल की एक फॉर्म है. They want some sort of information from the employees that are working at lower tiers. तो जब एम्प्लॉइज जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगे तो वो अपवर्ड कम्युनिकेट करेंगे. आप लोग जो हैं 16 में हैं, 17 से आप कम्युनिकेट करेंगे, अपवर्ड जाएंगे. 17 ग्रेड वाले 18 के साथ कम्युनिकेट करेंगे, 18 वाले 19 और 20 के साथ कम्युनिकेट करेंगे. तो दिस इज एन अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड यू पीपल रिपोर्ट बैक टू द मैनेजर्स, जो कि आपके सीनियर मेंबर हैं,
उनका डेजिग्नेशन कोई भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, उनका डीजी भी हो सकता है, उनका एजी भी हो सकता है, उनका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का ऑफिस भी हो सकता है और एडिटर जनरल का ऑफिस भी हो सकता है। तो ये लोग जो हैं ये जब नीचे से इंफॉर्मेशन ऊपर को भिजवाते हैं, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। Number three particular features of this vertical communication is typically more formal as it recognizes the different levels within the hierarchy. ये बड़ी फॉर्मल किस्म की एक मीटिंग होती है जिसके अंदर हायरार्की में डिफरेंट लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। ग्रेड आगुर से ग्रेड 16 से लेके ग्रेड 20 तक नॉर्मल और 20 से ऊपर जो है 21 और 22 तक भी कम्युनिकेट जब करते हैं। तो बड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है जिसमें पीपल एक दूसरे के साथ पहले ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, देन इंस्ट्रक्शंस के जवाब में व्हाटएवर परफॉर्मेंस यू वुड लाइक टू शेयर विद द हाई अप्स आप उससे करते हैं। तो ये फॉर्मल किस्म की एक हायरार्की होती है जिसके अंदर आप बड़े नबे तोले अल्फाज के अंदर आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। विद इन द हायरार्की there can be challenges in ensuring that upward communication is effective in large organization. For example, subordinates may consider that the seniors would not be interested in the opinions or information given by the subordinary. Subordinates आता मेरा ख्याल है कि ये हमारा एक डायलेमा थ्रू आउट रहा है हमारी हायरार्की के अंदर कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो जूनियर की ओपिनियन को इतना शायद इम्पोर्टेंस नहीं देती, इसलिए सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन या ओपिनियंस को सुनने में या पढ़ने में वो दिलचस्पी नहीं रखती। किसी हद तक दुरुस्त भी है ये कॉन्सेप्ट जो है और इट इज़ वर्ल्ड वाइड। सीनियर मैनेजमेंट जो है वो जूनियर की कोई इंफॉर्मेशन जो राय है सजेशन जो है वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। Subordinates may think that seniors are busy and already facing information overload and would not have time to consider the problems or suggestions provided by the subordinates. Subordinates जो हैं जैसे आप subordinate पोजीशन में काम कर रहे हैं, आप ये नॉर्मली ये समझते हैं कि हमारी ऊपर वाली मैनेजमेंट हमारी बातों पर तवज्जो नहीं देती एंड टेक इनटू कंसिडरेशन particularly this concept that top management is busy और already उनके पास information जो है वो काफ़ी overloaded होती है and they don't have the time to listen the problems of the subordinates. Recording stopped. सर साथ साथ स्लाइड्स भी चेंज कर लीजिए सर। नहीं, स्लाइड अभी यही चल रही है। आप जरा इस स्क्रीन शेयर हो रही है तो उसके ऊपर अभी तीसरा पॉइंट है मेरा सबऑर्डिनेट्स के बारे में वर्टिकल कम्युनिकेशन में। ठीक है सर, सही। पीपल कैन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है सर, आई थिंक वो स्लाइड शो नहीं हो रही। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की शेयर नहीं हुई थी? नहीं सर, मैं दोबारा देखता हूँ कि ये मैंने शेयर किया आपके साथ, आपको नजर आ रही है ये इंटरनल और एक्सटर्नल? सर वो लेक्चर 2 ही है, इफ्तिखार अहमद डीजी ऑडिट पास। उसके बाद नहीं आई? नहीं आई है सर। तो सर शायद आपकी स्क्रीन जो है वो पॉज हुई होगी। टॉप राइट साइड पे चेक करें सर, स्क्रीन का ऑप्शन जो पॉज हुई है उससे ऑन कर ले सर।
और मेरे पास तो शेयर हो रही है, लेट मी चेक इट, रिज्यूम शेयरिंग। स्टॉप सेकंड शेयरिंग हुई होगी सर। आप स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? नहीं, नहीं हुई है सर। अभी भी नहीं हुई। जी सर, अब शो हो रही है सर। आप शो हो रही हैं? जी जी सर, स्लाइड ओके, चेंज हो गई है सर। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आ गई है ना आपके Recording in पास? progress. अगली पे चलूं मैं? Recording stopped. जी जी सर, अब शो हो रही है, आप चले। Recording in progress. मैंने सेकंड स्लाइड, ये डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये इसकी शेयरिंग हो रही है? Recording stopped. जी सर, हो रही है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। इसमें मैं अर्ज Recording कर in रहा था कि progress. मैंने आप लोगों के साथ तीन किस्म की मैंने शेयर की थी, डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। ये तीनों नजर आ रही हैं आपको? If our head office is requested to respond. Recording stopped. जी सर। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? सर डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ हाँ, जी जी सर, आ रही है। ओके। अच्छा, अब मैं ये आपसे शेयर करना Recording चाह in रहा था कि progress. तीन मेजर किस्म की मैंने जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल जो है, ये डायरेक्शंस मैंने शेयर की हैं। इनकी दिन आगे जो है वो मैंने टर्न बाय टर्न, पहला जो है वो मैंने वर्टिकल लिया है। उन तीन में से पहली वर्टिकल, ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? Recording stopped. जी सर, ये आ रही है सर, आप आ रही है, ओके। कंटिन्यू करें अच्छा, सर। यहाँ मैं बात ये कर रहा था, अच्छा, Recording in जब आप progress. थोड़ा सा यहाँ पर जहन में ये रखिए कि जब कभी ये गायब हो जाए तो हेड ऑफिस जो है वो मुझे बता दे कि शेयरिंग पॉज में आ गई है, या कि ताकि मैं उसे दोबारा जो है अपने नेटवर्क से उसमें देख सकूं। तो वर्टिकल फॉर्म जो है, वन ऑफ द थ्री फॉर्म्स ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन, उसके अंदर पहला पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैनेजर्स जो हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, वो जब लोअर एम्प्लॉइज से लोअर लेवल पर वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं, तो उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। आपके डीजी, आपके एजी जो हैं, वो अपने ऑफिस के अंदर जब कोई डायरेक्शंस इशू करते हैं अपने लोअर मैनेजमेंट को, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। एंड सेकंड पॉइंट इसका मैंने आपके साथ शेयर किया कि एम्प्लॉइज वुड कम्युनिकेट अपवर्ड्स एंड रिपोर्टिंग बैक टू देयर मैनेजर्स विद अपडेट्स एंड रिजल्ट्स ऑन वर्क परफॉर्म्ड। एक चीज यहाँ पर मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि मैनेजर्स जो हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है इंस्ट्रक्शंस इशू करती है। दे वांट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर एम्प्लॉइज, और जब सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉइज जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन अपवर्ड भेजते हैं, तो अपने मैनेजर्स को अपडेट करते हैं, रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस बताते हैं, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगी। ये वर्टिकल की दो किस्में हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये मोर फॉर्मल होती है। मोर फॉर्मल ये है कि एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारे ऑफिस के अंदर एक डीजी का या एक एजी का दफ्तर होता है। एजी के नीचे एडिशनल एजीज होते हैं, उसके नीचे डेप्टी एजीज होते हैं, फिर असिस्टेंट एजीज होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर्स होते हैं, देन फिर सीनियर ऑडिटर्स होते हैं, सीनियर असिस्टेंट्स या ग्रेड 16 में जो लोग होते हैं।
Similar is the situation with the audit offices. DG is sitting at the top, then director, then deputy directors, assistant directors, और उसके बाद ऑडिट ऑफिसर्स और सीनियर ऑडिटर्स जो हैं वो लोअर लेवल के ऊपर बैठे होते हैं. अब यहाँ पर देयर आर सम सॉर्ट ऑफ ग्रीवेंसेस दैट आर फाउंड अमंग द सबऑर्डिनेट्स. आपकी शिकवे और शिकायत जो हैं वो सबऑर्डिनेट्स की ये होती हैं कि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो हमारे बारे में कोई हमारी राय के बारे में कोई इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती जानने के लिए. किसी हद तक दुरुस्त भी है कि आप इंफॉर्मेशन सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन देयर इज नो बाइंडिंग ऑन द सीनियर मैनेजमेंट टू एक्सेप्ट योर सजेशंस एंड प्रपोजल्स. दे कीप इन देयर माइंड्स कि जो वर्केबल हो उसको वो सजेशन को ले भी लेते हैं, लेकिन कोई बाइंडिंग उनके ऊपर नहीं होती. सबऑर्डिनेट ये भी समझते हैं कि सीनियर्स आर बिजी एंड ऑलरेडी फेसिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड and would not have time to consider the problems or suggestions provided by the subordinates. ये भी subordinate जो लोग हैं जैसे आपका कैडर है, ये भी इनके जहन में होता है कि सीनियर जो है वो काफ़ी बिजी लोग होते हैं और इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर्म में मौजूद होती है और वो हमारी सजेशंस को शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. तीसरा पॉइंट सबऑर्डिनेट्स जो हैं आपकी लेवल पर वो ये भी समझते हैं, दे फियर कि रिपोर्टिंग प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन ऑफ ए ग्रीवेंस में रिजल्ट इन एंटागोनाइजिंग एंड Recording डिसअपॉइंटिंग द stopped. सीनियर व्हिच मे हैव सर स्क्रीन वो स्लाइड दोबारा नहीं शो हो रही है, काइंडली चेंज करें. स्टॉप हो गई है. वर्टिकल सर आप कम्युनिकेशन शायद करना चाह रहे हैं, वो शेयर नहीं हो रही नहीं है. मैं वर्टिकली कर रहा हूँ शेयर आपके साथ. नहीं हो रही है सर, वो नहीं हो रही. अच्छा अब हो गई है सर, हो गई है. ठीक है नजर आ सर. रही है. ओके जी जी सर. Recording in progress. अब चौथा पॉइंट जो है सबऑर्डिनेट के ज़हन में ये होता है, तीसरा पॉइंट सॉरी, कि अगर हम ऊपर वालों को, ये वर्टिकल की ही मैं डिटेल बता रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये बाज़ औक़ात फियर भी फील करते हैं कि व्हेन दे कम्युनिकेट विद द हायर मैनेजमेंट अबाउट देयर ग्रीवेंसेस, तो वो उनको उलट भी पड़ सकती है और उनको सीनियर मैनेजमेंट को नाराज भी कर सकती है. एंड subordinates may have to face adverse consequences in this case. इसलिए वो कम ही ऊपर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं. चौथी जो सबऑर्डिनेट्स की ओपिनियन है वो ये भी फियर करते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो ये ख्याल की जाएगी कि जब हम ऊपर वालों को अपनी सजेशंस देते हैं तो कोई फेवर हम सीख ना करें. तो इसलिए सीनियर मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन को इतनी इम्पोर्टेंस या उनकी सजेशंस या प्रपोजल्स को वो अहमियत जो है वो नहीं देती. ये 3-4 किस्म के गिले शिकवे जो हैं वो सबऑर्डिनेट क्लास के होते हैं. और आप मेरा ख्याल है कि पीपल नो बेटर कि आपको कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करने में आती हैं. ये क्वेश्चन अगर कोई है तो इसको लिख लें, मैं फिर इसको एड्रेस करूँगा बाद में. टाइमली जो है ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के सिलसिले में 3 मेजर पॉइंट्स एंड देन द सजेशंस एंड प्रपोजल्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स आर द फियर्स दे फील इन कम्युनिकेटिंग विद द सीनियर ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट जो है वो फील करते हैं. क्या आपका भी यही एक्सपीरियंस है? मैं इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आपका बाद में आएगा तो आई विल एड्रेस इट प्रॉपरली. तो मैं अपने पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कीप ऑन नोटिंग डाउन योर क्वेश्चंस. मैं लास्ट में आपको 15-20 मिनट दूंगा,
उसमें मैं डिटेल में आपके सवालों के जवाब जो हैं वो मैं देने की कोशिश करूंगा। दूसरी जो डायरेक्शन है कम्युनिकेशन की वो है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन occurs between a between people of similar standing। आप जैसे कुलीग हैं जो आपस में जो Recording कम्युनिकेट stopped. करते हैं सर नहीं शो हो रही है सर, हॉरिजेंटल न्यूज Horizontal स्लाइड नहीं miss हो शो हो गई? रही। जी जी सर, वो शो करें। स्लाइड शो नहीं हो रही फिर। ओके, मैं इसको रेस्टोर करता हूँ। अब हो गई है सर, शो हो रही है। अच्छा, ये सही नजर आ रही है आपको ऐसे? जी जी सर, सही नजर आ रही है सर। अच्छा, ओके ओके, चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, वो उसका फिर वो Recording in कैनवस बड़ा नहीं progress. करते उसको। अच्छा, हॉरिजॉन्टल जो है वो कम्युनिकेशन, उसके अंदर ये पीपल ऑफ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग के जो लोग होते हैं उनके दरमियान होती है। मसलन आप लोगों का ग्रेड 16 है, व्हेन यू पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो आपकी सिमिलर स्टैंडिंग है, और इस टाइप की जो गुफ्तगू होगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी formal or informal, depending on whether it occurs between colleagues and friends or external to the organization or group। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है, जब आप ग्रेड 16 वाले ग्रेड 16 के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। But this is not the restriction here. You may communicate with other people of your similar cadre, similar class and the similar status people जो है जो आप करते हैं, तो आप एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो कहलाती है। तीसरी किस्म जो है वो आपकी डायगोनल कम्युनिकेशन है। डायगोनल इज ए वर्ड जो कि आपको उर्दू में अगर मैं समझाऊं तो इट इज वो तिरछी जो कम्युनिकेशन होती है। कभी टॉप मैनेजमेंट बिल्कुल लोअर्स के साथ बात करती है, या बाहर से लेटरल एंट्री भी हो जाती है। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो बाज़ औक़ात वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है वो मिक्स अप हो जाती हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है। दूसरा पॉइंट डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर है, इन ए कमर्शियल एनवायरनमेंट this might involve crossing communication when coordinating projects, ideas or problems are solving। बाज़ औक़ात डायगोनल कम्युनिकेशन की मिसाल को आप यूँ समझ सकते हैं कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट जो है वो बाज़ औक़ात बिल्कुल जो इनिशियल लेवल के सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके साथ गुफ्तगू करके ओरिजिनल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। मसलन प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है तो वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाज़ औक़ात डायरेक्टली जो फील्ड के अंदर काम कर रहा होता है बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर, उसके साथ गुफ्तगू करके अपने प्रॉब्लम जो है प्रोजेक्ट के वो सॉल्व करने की कोशिश में होता है। और ही बाईपासेस द हायरार्की दैट इज फाउंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नीचे जो है वो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर है, या और टाइप की जो भी हायरार्की एग्जिस्ट करती है इन दैट, तो वो इन सारे चैनल्स को बाईपास करके डायरेक्टली उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करती है सीनियर मैनेजमेंट हायरार्की, ताकि उन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर वो बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकें और फिर उसको वो सॉल्व कर सकें। तो ये भी एक सूरत जो है ये जो है कम्युनिकेशन की होती है कि बजाय इसके कि डीजी जो है वो
डायरेक्टर को कहे, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर को कहे, डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर को कहे, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो सीनियर ऑडिटर को कहे। डीजी डायरेक्टली उस बंदे को जो उस सीट को डील कर रहा होता है उसको डायरेक्टली बुला लेता है अपने पास कि यस कम इन और मुझे बताएं कि असल इशू है क्या। आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत से गैप्स आ जाते हैं। मसलन एक जगह से जो बात चलती है वो दूसरे तक पहुंचती है तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंज आने का चांस होता है। दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है, चौथे तक पहुंचती है तो शायद असल बात तो साइड पर रह जाए, लेकिन कोई और ही सूरत हाल जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंच जाती है। तो यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन योर लाइफ कि इसीलिए कहते हैं ना हमारे मज़हब में कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन यू हैव द टेंजिबल एविडेंस अबाउट द थिंग्स तो आपको वो माननी चाहिए, सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है वो नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मिसलीड्स यू टू evaluate the things properly and to come across the क्या कहते हैं आप कि सही सूरत हाल का पता नहीं चलता। तो ये तो आपकी ज़िंदगी का, हमारी सबकी ज़िंदगी का ये होता है कि जितने हाथों से बात निकलेगी उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आने के चांसेस होते हैं और अल्टीमेटली जब फाइनली जहाँ पहुँचेगी तो शायद उसका हुलिया ही चेंज हो चुका हो और असल चीज़ उसमें से गायब हो चुकी हो। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन की सूरत के अंदर जो है हम टॉप मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट हार्सिस माउथ या वो बंदा जो कि ओरिजिनल उसके ऊपर काम कर रहा है उसी से पूछ लेता है कि भाई असल इशू क्या है, ताकि हम इसको प्रॉपर्ली जो है वो एड्रेस कर सकें। तीसरा फीचर इसके अंदर डायगोनल कम्युनिकेशन के अंदर ये आता है the technique can be used to bypass blockages in the usual vertical reporting lines, such as when a line manager is on holiday or a vertical technical input is required outside the usual sphere of expertise. Sphere नहीं है, sphere of expertise. तो ये मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो सारे चैनल्स को बाईपास करके ओरिजिनल चैनल के ऊपर पहुंचती है। वो बंदा जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो डायगोनल इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब हम आते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन नीड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन नीड। देखिए ये दुनिया बहुत वास्ट है। यू माइट हैव एन एक्सपीरियंस कि आपको हर वक्त किसी न किसी न्यूज़ या नॉलेज के बारे में आपको पता चलता रहता है। तो इंफॉर्मेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि इट इज़ ए न्यूज़ और नॉलेज रिसीव्ड और गिवन। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट इज़ ए न्यूज़ और नॉलेज received or given. This is called information. कोई नई खबर, कोई नई चीज जो है जब आप रिसीव करते हैं या आप किसी को देते हैं तो ये इंफॉर्मेशन कहलाती है। Then we come to the word need. नीड क्या है? A need is something that is necessary for an individual or an organization. एक मेयर इंफॉर्मेशन है, एक नीड होती है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है टू सॉल्व योर प्रॉब्लम और टू हैव ए नॉलेज ऑफ दैट। तो वो आपकी जब ज़रूरत कोई इंफॉर्मेशन बन जाती है तो फिर आप इंफॉर्मेशन नीड्स के तहत उसको डील करते हैं। तो इंफॉर्मेशन नीड्स जो कि हेडिंग मैंने अपनी स्लाइड के अंदर आपके सामने डिस्प्ले में रखी है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इंफॉर्मेशन एंड नीड्स, एंड व्हेन कंबाइंड टुगेदर के इंफॉर्मेशन नीड्स क्या होती हैं तो उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं।
The term information need is often understood as an individual or organization's desire to locate and obtain information to satisfy a conscious or unconscious need. जब भी हम किसी तलाश में होते हैं किसी इंफॉर्मेशन के, तो हमारे अंदर एक अर्ज पैदा होती है, एक ज़रूरत का एहसास पैदा होता है कि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ऐसी जो ज़रूरियात हैं उनको जब हम टेक ओवर करते हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तो वो इंफॉर्मेशन नीड्स कहलाती है। और वो इंफॉर्मेशन नीड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बड़ा एक मेजर रोल प्ले करती हैं। तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो नीडेड क्यों है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, हम चीज़ों को जानने की क्यों टो में रहते हैं। एक तो खैर हमारा वैसे भी कल्चर है हम पाकिस्तानियों के कि हम खामखाई टो में लगे रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात व्हेन यू आर स्टक अप विद योर academic discussions are to resolve any issue, तो आपको कुछ टेक्निकल फैक्ट्स जो हैं, ओरिजिनल फैक्ट्स चाहिए होते हैं। तो आप उनकी तलाश के अंदर जब निकलते हैं तो वो आप इंफॉर्मेशन कॉन्शियस या अनकॉन्शियस उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं अपने आप को कि ये वो चीज़ है जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी हमें ज़रूरत थी, हमें वो मिल गई है। तो we need information because it empowers our information. नीड जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को बढ़ाती है। अगर नीड नहीं होगी तो आप मेरे ख्याल है नॉलेज एक्वायर करना छोड़ देंगे। तो हम जब अपने माशरे में हम देखते हैं तो हम बेजा किस्म की इंफॉर्मेशन के पीछे हम पड़े रहते हैं, जिसका बज़ाहिर हमें फ़ायदा तो कोई नहीं होता, लेकिन शायद गपशप के लिए हम वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। एंड एट द डे एंड हमें ये पता चलता है कि वो तो यूज़लेस इंफॉर्मेशन थी, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, जिसके पीछे हम सारा दिन हमने ज़ाया कर दिया। तो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कौन कौन सी एम्पावरमेंट देती है, कौन कौन सी जो है वो हमें चीज़ें देती है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। उसमें मैंने दिया है कि इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट करती है या डेवलपमेंट करती है विच लीड्स टू एकेडमिक क्रेडिबिलिटी। व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग विद साउंड नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज, तो ये एकेडमिक क्रेडिबिलिटी की बात है कि लोग आपके ऊपर यकीन करते हैं कि दिस मैन इज ए नॉलेजेबल पर्सन। तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट को बढ़ाती है। इंफॉर्मेशन नीड का दूसरा जो है पहलू कि इट अलाउज डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। किसी भी टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर जब आप फर्दर नॉलेज अपना जो है वो हासिल करते हैं तो क्या होता है कि आपकी डेवलपमेंट होती है, आपकी शख्सियत की डेवलपमेंट होती है। द एरिया ऑफ स्पेशलाइज्ड, आजकल तो छोटे से छोटा एरिया जो है स्पेशलाइजेशन के वो आगे हैं। आप किसी के ऊपर भी काम करें तो यू आर एनरिचिंग योर इंफॉर्मेशन, यू आर डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सम स्किल्ड वर्कर और a specialist in that field. नंबर 3 जो है वो Recording stopped. इंफॉर्मेशन जो है it helps in leading to an ability to discuss your subject with authority. सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि नमाज ब्रेक थोड़ी सी देर कर लें सर। नमाज पढ़ने के लिए जी जी सर, 10 मिनट की ब्रेक कर लें सर। 10 मिनट की, चलें 10 मिनट की ब्रेक कर लें जी, मैं फिर हाजिर होता हूँ, आप पढ़ लें नमाज। ओके हाँ जी कि डिफरेंट हमें क्या Recording in इसकी progress.
हमें क्या फायदे जो हैं इंफॉर्मेशन लेने के वो क्या होते हैं। तो मैंने आपके साथ दो शेयर कर लिए थे मैंने जो हैं फायदे। तीसरा फायदा इसके अंदर मैंने ये दिया था आपको कि पिछली स्लाइड जाएगी कि ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाती है। तीसरा था कि इट हेल्प्स इन लीडिंग टू एन एबिलिटी टू डिस्कस योर सब्जेक्ट विद अथॉरिटी। कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड है, पूरी इंफॉर्मेशन है, तो आप अपनी अथॉरिटी के साथ बैठ के तो बड़े कॉन्फिडेंटली आप बातचीत कर सकते हैं उनके साथ। और आपको ये एक्सपीरियंस भी हुआ होगा अपनी सर्विस के दौरान कि मैंने कहा कि टॉप मैनेजमेंट बाज़ औक़ात सीनियर ऑडिटर को बुला लेती है कि आके हमें असल मसला बताओ। तो सीनियर ऑडिटर की जितनी नॉलेज है वो शायद उसके ऊपर वाले लोगों की इतनी नॉलेज ना हो। वो इसलिए कि वो बंदा बुनियादी तौर पर उस केस को, उस फाइल को स्टार्ट करने वाला है, उसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो आती हैं उसको लगाने वाला है, और उसकी नज़र से ये सारी चीज़ें जो हैं उसके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को वो एनरिच कर रहा होता है अपने को। तो वो बड़ी अथॉरिटी के साथ, अपने हायप्स के साथ वो अपनी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता है। चौथा जो है इंफॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए होती है कि इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन मेकिंग डिसीजंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, इंफॉर्मेशन जो है वो आप सही नहीं रखेंगे, तो आप कंप्लीट एक अच्छा डिसीजन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो these are the four areas that why we need information जो है इसके तहत हम डील करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कहते किसे हैं, और उसकी एग्जाम्पल जो है वो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ शेयर करूं। इंफॉर्मेशन इज द समराइजेशन ऑफ डेटा। डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं और फिगर्स होती हैं जिसे आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं इन द शेप ऑफ समरीज एंड द टोटल्स। मसलन कोई भी इंफॉर्मेशन जब जनरेट होती है तो उस डेटा के बारे में बेसिक फैक्ट्स पहले इकट्ठे किए जाते हैं। टेक्निकली डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, ये फिगर्स होती हैं जिनको आप प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक समरी बनाते हैं, या बहुत सारी फिगर्स को जमा करके एक टोटल जो है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन पाकिस्तान की टोटल रेवेन्यू टारगेट्स क्या है। तो रेवेन्यू टारगेट जो है आपका, पाकिस्तान का टोटल जो है वो आमदनी कितनी है, पाकिस्तान की टोटल जो है वो खर्चा कितना है। तो जब आप आमदनी की तरफ जाते हैं तो एक गवर्नमेंट जो है उसको मुख्तलिफ ज़राए से जो उसका रेवेन्यू या आमदनी जो है वो आ रही होती है, वो सारे के सारे इंडिविजुअल फैक्ट्स और डेटा होते हैं। जब उसको कंपाइल करके हम एक इंफॉर्मेशन, एक फिगर में ले आते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो इतनी जो है वो आमदनी है साल की, और पाकिस्तान की खर्चा जो है वो इतना है। दो फिगर्स है ना बजट की, जब आप देखते हैं तो एक साइड के ऊपर आपकी आमदनी होती है, दूसरी साइड के ऊपर आपका खर्चा होता है। और जब हम आमदनी के डिफरेंट हेड्स को देखते हैं तो उन सब का टोटल जो है वो इकट्ठा करके एक रेवेन्यू की फिगर जनरेट होती है। इसी तरीके से हमारा जो खर्चा है बजट के अंदर, उसमें हम देखते हैं पे एंड अलाउंसेस के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, हमारा डिफेंस के ऊपर कितना आ रहा है,
हमारा जो है वो चार्ज एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा वोटेड एक्सपेंडिचर कितना है, बाकी डे टू डे एक्सपेंसेस को डील करने के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स इकट्ठे होके एक फिगर जब जनरेट करते हैं तो वन फिगर जो है वो आपकी समराइजेशन ऑफ डेटा जो है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो दे देती है। After discussing the various forms of information needs and what sort of needs are required to satisfy our day-to-day affairs, उसके बाद हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है ये कौन सा रोल प्ले करती है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वट एवर द बिजनेस वी आर रनिंग, वट एवर द एरिया और डिसिप्लिन वी आर डीलिंग विद, तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सा रोल प्ले करती है। तो मैंने ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस जो है वो हेल्पफुल होती है टेली मार्केटिंग के अंदर। टेली मार्केटिंग, टेली मीन्स दूर, मार्केटिंग तो दूर दराज के एरियाज के अंदर भी आप इंफॉर्मेशन बेस करके आप अपनी जो है वो बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती है कि आपकी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है आप उसको लेके प्रॉपरली अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो करने के काबिल हो जाते हैं। और अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वुड बी नॉट कंप्लीट, और उसका दर्जा जो है वो शायद इतना बेटर ना हो जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन आवर बिजनेसेस। फिर क्या है कि इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हमारे कस्टमर्स के बारे में है, तो हमारी सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर हो जाएगी। Whenever we receive some sort of information from the customers कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उस डेटा को इकट्ठा करके आप जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करते हैं, उनको सर्विस देते हैं, तो आपकी साख जो है, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। आपकी कंपनी जो है, जो बिजनेस जो है, लोग उस पर इत्मीनान करना सीख लेते हैं। चौथी चीज़ जो है इंफॉर्मेशन बिजनेस के अंदर रोल जो प्ले करती है वो एक ट्रेनिंग का एलिमेंट है कि बाय गिविंग ट्रेनिंग टू दी पीपल हम अपने बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, हम अपनी कैपेसिटी को, एबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। हियर वी आर सिटिंग, जो हमारी क्लास हमारी चल रही है इसके अंदर हम देखते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको क्यों दी जा रही है। ये ट्रेनिंग आपको इसलिए दी जा रही है प्रेफर की कि आप बेटर नॉलेजेबल हो जाएं, आपके पास तमाम सब्जेक्ट्स का नॉलेज आ जाए, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको नेक्स्ट प्रमोशन कैडर के लिए कंसिडर कर लेती। तो आपकी ट्रेनिंग्स जो हैं दैट इज ए पार्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। तो आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं, इंफॉर्मेशन जो है आपकी कंप्लीट हो, सेल्स में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ जाए कि फला एरिया के अंदर हमारी सेल जो है वो क्यों कम हो गई। और जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमारी सेल कम हो गई है, तो मैनेजमेंट बैठ के ये फैसला करती है कि हमें इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, हमें किस तरीके से इसको लेके चलें कि हमारी सेल्स जो है वो घटने की बजाय वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो इट इज क्लियरली meant that sales are customer service, financial management, telemarketing, all are linked with the information जो है जो आपको दी जा रही है। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जब आप अगर कुछ चीज़ आप बना रहे हैं तो डे टू डे उसके अंदर रिसर्चेस हो रही हैं। उन रिसर्चेस के बारे में आप जब पढ़ते हैं, जब आप उसको अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, which is not possible without your modern knowledge.
देन 7th नंबर के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन जो है आपकी मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देती है कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, उनकी राय लेते हैं, आप सर्वे करते हैं और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर कि लोग क्या कहते हैं आप अपनी मार्केटिंग को रीवैम्प करते हैं, वो डिफेक्ट्स दूर करके। तो मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो आपको हेल्पफुल होती है कि आप किस तरीके से अपना जो है वो बढ़ा सकते हैं, अपने सेल्स को, अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने के अलावा बेटर बाकी चीज़ें जो है कर सकते हैं। ये जो 7 चीज़ें मैंने आपके साथ रोल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस के अंदर उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन के गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है इंफॉर्मेशन का, ये कहाँ तक आपकी चीज़ों को हेल्पफुल होती है और कहाँ तक आपको ये फायदा देती है। इट हेल्प्स टू इनिशिएट द एक्शन। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो ये आपको कोई एक्शन स्टार्ट करने के लिए तहरीक पैदा करती है, आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो प्रॉब्लम्स आपको फेस आ रहे होते हैं। दूसरा पर्पस या गोल ये होता है कि यू एक्सचेंज आइडियाज और इंफॉर्मेशन विद ईच अदर टू मेक बेटर योर सर्विस डिलीवरी, टू मेक बेटर योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें जो हैं उनको बेहतरी की तरफ लाने के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल होती है। तीसरा गोल इंफॉर्मेशन का ये होता है कि इट मेक्स रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। आप जब लोगों से मिलते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आपके अच्छे रिलेशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं और आप बेहतर बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। वट एवर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वट एवर टाइप ऑफ बिजनेस यू आर कैरिंग आउट, आप उसके अंदर जो है वो बेहतर रिलेशनिंग जो है वो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव एट योर क्रेडिट। इम्पोर्टेंस ऑफ नेक्स्ट मैंने जो टॉपिक रखा है आपके लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्या क्या रोल प्ले करती है, अब मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। तो काइंडली सुनिएगा कि कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी जिंदगी के अंदर इंफॉर्मेशन का बड़ा मेजर रोल है कम्युनिकेशन का, कि हाउ इफेक्टिवली वी कम्युनिकेट विद वन अनदर। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सीड आवर प्रोग्रेस, build up reputation and win friends and customers without effective communication skills। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास अल्लाह की दी हुई ये बड़ी एक नेमत है, एक बड़ी स्किल है, एक बड़ी खूबी है कि लोग बड़े अच्छे तरीके से कुछ दूसरों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। वही नॉलेज और स्किल दूसरे बंदे के पास भी होती है, लेकिन ही डोंट हैज द आर्ट टू कन्वे इट इफेक्टिवली। तो पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें जो हैं वेरी करती हैं कि द पर्सन हु हैज़ द आर्ट एंड स्किल ऑफ कम्युनिकेटिंग हिज आइडिया to the other people effectively, he is the successful resource person, he is the successful manager, he may be the successful officer, he may be the successful personality in all the areas of his business. Good communication results in saving time। अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो आपका टाइम सेव करती है। If a resource person is capable to communicate effectively, तो उसके सुनने वाले जो हैं वो बड़ी जल्दी चीजें समझ आते हैं। And if this ability is lacking in that person, तो शायद चीजों को समझाने के लिए दूसरों को वो टाइम जो है वो ज्यादा ले। तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए
ये है कि ये आपके टाइम को सेव करती है, रिड्यूस करती है आपके मिस्टेक्स को और प्रमोट करती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपने देखा होगा कि स्पोक्स पर्सन जो हैं वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने रखे होते हैं जिनके अंदर ये खूबी पाई जाती है कि वो अपना माफी ज़मीर जो है दे कैन clearly state before the other people who are linked or has stake with that organization, तो वो अच्छे तरीके से बातचीत कर लेते हैं। तो सादा अल्फाज में कहूँगा कि कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट, कि आप किस तरीके से बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को कॉइल कर सकते हैं। ये आपका टाइम सेव करती है अगर अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत कर लेते हैं, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं और यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच यू आर वर्किंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी सूरत में अगर पुअर कम्युनिकेशन जो है वो किसी शख्स के अंदर पाई जाती हो तो वो शायद ये तमाम फायदे जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हासिल हो सकते हैं वो उसके अंदर कामयाब ना हो सके। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन से हमें क्या फायदे हासिल होते हैं? Good communication helps in smooth working of a business firm. Effective communication is necessary for the successful and smooth working of a business firm. A manager properly links up various elements to achieve his targets. अगर आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो स्मूथ वर्किंग ऑफ ए बिजनेस फर्म जो है दैट इज लिंक्ड विद योर कम्युनिकेशन प्रोसेस। नंबर 2, कौन सा जो इम्पोर्टेंस है कि हम क्या हासिल करते हैं? गुड कम्युनिकेशन या इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इट इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। Effective communication helps in planning different programs and controlling the activities of individuals and departments. आपने देखा होगा अक्सर कि टॉप मैनेजमेंट जब आपके पास कोई इशू आता है तो वो एक मीटिंग कॉल करते हैं एक हॉल के अंदर और सब लोगों को अप्राइज करती है मैनेजमेंट के हमारा मकसद ये था, हम यहाँ लैग कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, तो आप ज़रा बेहतर अंदाज से काम करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव कर सकें। तीसरा डिसीजन जो है वो तीसरा जो बड़ा फ़ायदा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का है वो ये है कि इट इज़ हेल्पफुल इन क्विक डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन सही होगी, टाइमली होगी, करेक्टली होगी तो आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। मेकिंग क्विक डिसीजंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन पावरफुल फिनोमेनन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर इंफॉर्मेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है आपका, तो शायद आपको अपने डिसीजन लेने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। नंबर 4, maximum production at minimum cost. Every organization wants to get maximum output at the minimum cost. It requires an effective internal communication system कि आप maximum production हासिल कर सकते हैं minimum cost से। जब आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को अगर मोटिवेट करेंगे तो आपकी जो वेस्टेज है उसको वो रिड्यूस कर देंगे वो लोग और आप मिनिमम कॉस्ट के साथ अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। तो इन दिस वे यू कैन मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। दिस इज द 4th वन, फ़ायदा जो है जो हमें इम्पोर्टेंस जो है वो नज़र आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। 5वां फ़ायदा जो है वो
वो ये है कि बिल्डिंग ह्यूमन रिलेशंस। कम्युनिकेशन जो है ये टू वे ट्रैफिक है which helps to promote cooperation and understanding between the partners of an organization. कम्युनिकेशन टू वे ट्रैफिक है जो कि आपस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये ह्यूमन रिलेशंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप अच्छे ताल्लुकात दूसरों के साथ बना सकते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ द गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कुछ लोग बैठे महफिल के अंदर छा जाते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू communicate effectively with other people who are sitting in that area. तो इस तरीके से आप ह्यूमन रिलेशंस की बिल्डिंग जो है उसमें भी कम्युनिकेशन के रोल को आप बेहतर अंदाज के अंदर इस्तेमाल करके अपने मतलूबा नताज डिजायर्ड रिजल्ट्स यू कैन गेट। सिक्स्थ फायदा जो है कम्युनिकेशन का वो ये है कि इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Effective communication is the lifeblood of an organization. Without communication, an organization is lifeless and its existence is in danger. Please note it down कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो अगर पाई जाएगी तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे आएंगे, और अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी है तो शायद आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइफलेस हो जाए और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस है वो डेंजर में पड़ जाए। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अलावा भी देयर आर अदर वेरियस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कि लोगों का एतमाद उठ गया है हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। क्यों? कि हमारे अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी है। People are not satisfied with the public sector organizations. इसकी निस्बत आप प्राइवेट किसी फर्म या अदारे में चले जाएं तो वहाँ आपकी बात को सुना जाता है, आपके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाता है, जबकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अदारों के अंदर कोई किसी की बात सुनने का रवादार नहीं होता। That's why we are lacking in this aspect के लोगों को एतमाद गवर्नमेंट के अदारों के ऊपर खत्म हो गया। अगर आपको कभी गवर्नमेंट के अदारों के अंदर, किसी भी अदारे के अंदर, मैं किसी एक अदारे का नाम नहीं लेता, कहीं भी जाएं तो आपके ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया ही नहीं जाता, आपको टाल दिया जाता है, आपको तारीख पर तारीख दी जाती है, फलां दिन आ जाए, फलां रिकॉर्ड ले आए, फलां कर लें आप। जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा नहीं होता। इन वन सिटिंग दे सॉल्व योर प्रॉब्लम और आपको सेटिस्फाई करके वो भेजते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर की हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, दे आर लैकिंग इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और हर बंदा जो है अपने सर से जो है बोझ उतारना चाहता है कि मुझे ये काम करना ही ना पड़े। तो इट इज़ ए वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हम पब्लिक के पैसों से तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन, लेकिन हम पब्लिक की खिदमत नहीं करते। पीपल डोंट ट्रस्ट अस। आप पुलिस के पास चले जाएं, आप अदालतों में चले जाएं, आप ऑडिट में चले जाएं, आप सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, नो वन लिसन्स टू द अदर। उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स और भी हैं लेकिन बात ही कोई नहीं सुनता। तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि सरकारी महकमे से, सरकारी बंदे से तो किसी का काम ही ना पड़े। तो दिस इज अ हाइट ऑफ आवर इनएबिलिटी टू हैंडल द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन टुडेज वर्ल्ड। नंबर 7 इम्पोर्टेंस जो है वो एक्सटर्नल पार्टीज एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Communication is essential not only for internal management of the organization, but it also helps contacting the outside the world. Such contacts increase the goodwill of the firm. External parties can be attracted by effective business communication. Effective business communication आपकी होगी तो लोग
आपके पास अट्रैक्ट करेंगे, आपके पास राब्ता रखेंगे और आपकी गुडविल जो है वो इंक्रीज होगी। और आई एम शेयरिंग विद यू पीपल कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग दुआ मांगते हैं कि हमें सरकारी किसी महकमे के साथ काम न पड़े, वो वापडा हो, वो स्वी गैस हो, वो कोई महकमा हो। You will never get the desired results with your come in contact with those people। और ऑडिट वालों के बारे में भी तो लोगों को पता है कि ये लोग नहीं टाल देते हैं। तो प्लीज रिमूव these bottlenecks through effective communication। प्लीज गिव देम satisfactory जो है आप जरा नोट दें कि नहीं, वी आर नॉट सो सच निकम्मे पीपल नहीं हैं। इफ समवन कम्स टू अस वी सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्ता एक नेचुरल राब्ता है। तो अपनी गुडविल साख को बढ़ाने के लिए यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द effective communication and the spirit to solve their problems। 8वां फायदा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये है कि डेवलप स्किल एंड एक्सपीरियंस। बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो अपनी स्किल और एक्सपीरियंस को आप बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ें आपके नॉलेज में नहीं थी वो आप ला सकते हैं और अपने बिजनेस को ज़्यादा बेहतर अंदाज से आगे चला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is helpful in dispute settlement। It is in a business concern, various types of disputes take place between workers and the management। They can be solved with proper communication। अगर आपके पास अच्छे अल्फाज हैं, आप किसी का काम नहीं भी कर रहे तो अच्छे अंदाज से उसको समझा तो सकते हैं। उनके दरमियान जो डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं उनको आप बड़े अच्छे अंदाज से आप उसको सेटल कर सकते हैं। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि आप अच्छे अंदाज से इसको लेके अगर चलेंगे तो आप अपने बिजनेस में या अपने महकमे के अंदर अपनी नेक नामी कमाएंगे। अदरवाइज जो हाल हमारा हो रहा है वो मैं और आप सारे देख रहे हैं और इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लेक्चर जो मैंने एंड किया है, ये कम्युनिकेशन के बारे में था। दूसरा पार्ट आज के लेक्चर का ये है कि पिछले लेक्चर में मैंने ऑफिशियल लेटर आपको दिया था, इसमें मैं आपको डेमी ऑफिशियल लेटर जिसे कि डीओ लेटर भी कहते हैं। डीओ लेटर जो है वो क्या होता है, डीओ लेटर को डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं और ये किन किन हालात के तहत लिखा जाता है, कौन लिखने के मजाज होते हैं। काइंडली स्टे विद मी टू अंडरस्टैंड the various steps that are involved or linked in writing a DO letter। Dummy official letters are used in following circumstances. Number one, in correspondence passed between the government officials for communication of information or opinion without the formality of the prescribed procedure। DO letter के अंदर दो ऑफिसर जो हैं वो आपस के इक्वल रैंक के लोग आपस को डीओ लिखते हैं। पहला था वो फॉर्मल वे था, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है कि पर्सनल टच इसके अंदर आ जाता है कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को जो लेटर लिखता है पर्सनल कैपेसिटी के अंदर उसको डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इसमें प्रेस्क्राइब प्रोसीजर जो है, फॉर्मेलिटी जो हम लेटर राइटिंग के अंदर लिखते हैं वो यहाँ नहीं पाए जाते। बी पार्ट इसका ये है कि व्हेन इट इज डिजायर्ड दैट ए पर्टिकुलर मैटर शुड रिसीव द पर्सनल अटेंशन ऑफ द ऑफिसर टू होम द लेटर इज एड्रेस्ड। डीओ लेटर के अंदर दूसरे ऑफिसर जिसको लिख रहे हैं आप उसकी पर्सनल अटेंशन जो है वो रिसीव करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है when it is intended to bring to the personal notice of an officer a case on which action has been delayed and official reminders have failed to get a suitable reply।
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि ये जो है एक ऑफिसर जो है, जब लेटर पर लेटर हम भेजते हैं, कोई जवाब नहीं आता, तो फिर उस महकमे का सेक्रेटरी जो है, उस महकमे का डीजी जो है, वो दूसरे महकमे के डीजी को लिखता है कि जनाब ये मैटर मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ, हम रिमाइंडर्स भी दे चुके हैं, हम बहुत सारी डिले इसमें आ गई है, तो आई इनवाइट योर अटेंशन के हमारे मसले को सुना जाए और उसका सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। डी पार्ट या चौथा पार्ट डेमी ऑफिशियल लेटर के अंदर जिसका ख्याल रखा जाता है, देयर आर आल्सो अदर ओकेजन्स फॉर राइटिंग डेमी ऑफिशियल लेटर्स. It so happens that a senior officer of a ministry write a demi-official letter on a matter of immediate nature to his counterpart in other ministry in order to save the time. Normal लेटर लिखने से आपकी टाइम की वेस्टेज होती है, और जब टाइम को शॉर्ट करना हो, सेव करना हो, तो एक मिनिस्ट्री का एक सीनियर, एक महकमे का अफसर जो है वो दूसरे महकमे के इक्वल रैंक के अफसर को डीओ लेटर लिखता है ताकि टाइम की सेविंग की जा सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टू नॉन ऑफिशियल्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर्स बट शुड नॉट बी रेफर्ड टू एज सच। डीओ लेटर इज एड्रेस्ड पर्सनली टू एन ऑफिसर बाय नेम। ये बाय नेम होता है। Such letter is not opened by anybody else except the officer's consent. ये बाय नेम लेटर लिखा जाता है और वही ऑफिसर उस लेटर को खोलने का मजाज होता है। बाकी जो आम लेटर जो आम हमारे होते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको शेयर किए थे, वो सेक्रेटरी के नाम, डीजी के नाम, हेड के नाम लिखा जाता है, लेकिन उसको खोलने के लिए कोई भी लेटर को खोल सकता है और फिर वो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ हायर ऑफिसर जो है उस तक चला जाता है। बट इन केस ऑफ डीओ लेटर ये बाय नेम होता है, उसी को रिसीव होता है, वही इसको खोलने का मजाज है। क्या कहते हैं, वही खोलने का उसे इख्तियार हासिल है। इवन पीए या पीएसपी उस लेटर को नहीं खोल सकता। He puts the letter before that officer कि सर ये आपका लेटर है, और वही उसको खोलेगा, पीए भी नहीं खोल सकता। There are few deviations from the accepted path in respect of wording such letter, depending upon the personal terms existing between the sender and the addressee. फिर इसके अंदर चूंकि मैंने अर्ज किया कि दोनों ऑफिसर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल रैंक के होते हैं, they can address each other without observing any formality. तो ये ज़्यादा मौजूद तरीका है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर कि आप डीओ लेटर के जरिए अपने काम को जल्द से जल्द और अपने मतलूबा नताइज जो हम हासिल कर सकते हैं। द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ राइटिंग ए डीओ लेटर इज टू इंश्योर एक्सपीडिशियस एक्शन इन प्रोसेस टू एलिमिनेट डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द केस। ये सवाल आपको इम्तहान में आ सकता है कि प्रिंसिपल पर्पस ऑफ राइटिंग डीओ क्या है। तो ये क्वेश्चन जवाब है उसका कि ये एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द इशू जो है उसको इंश्योर करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है ये डीओ लेटर कहलाता है। ये टाइम सेव करता है हमारा, और ये पर्सनल लेवल पर लिखा जाता है, और ओनली ऑफिसर टू होम इट इज एड्रेस्ड वही इसको खोलने का मजाज है। क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जब हम देखते हैं कि डीओ लेटर की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टू एड्रेस द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर लेटर बिलो द सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। जो बंदा डीओ लेटर लिख रहा होता है राइट हैंड साइड के ऊपर, वो अपना नाम के साथ सिग्नेचर कर देता है, और उसी के बराबरी में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जिसको डीओ लिखा जाता है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन वो लिखा जाता है। ये तरीकाकार जो है वो डीओ लेटर के अंदर अपनाया जाता है। ये एक स्पेसिमन मैंने आपके लिए डीओ लेटर का लिखा है, सर्च किया है मैंने, इसको काइंडली आप ज़रा देख लें
you will come across how the DO letter is written. तो with this I conclude by today's lecture. आपके पास अब 10-15 मिनट हैं, आप कोई क्वेश्चन अपना रेज कर सकते हैं, तो यू में आस्क योर हेड ऑफिस के वो आपको अलाउ कर दे तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी हेड ऑफिस जो है Recording stopped. जी सर म्यूटेड हैं, ये क्वेश्चन जिनके हैंड रेज हैं सर वो क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। Recording in progress. सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। सर आप कह रहे थे कि लाहौर वाले नहीं आते तो हमने कहा आज आप हमें हाजिरी दें पहले। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। मैं तो लाहौर वाले तो मुझे नजर ही नहीं आया, पिछले सेशन वाले छाए रहे और उन्होंने बात मेरी कोई नहीं सुनी, बस वो ऐसे ही करके चले गए। तो लाहौर वाले जरा सीरियस हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप अच्छा सर, ऐसे है कि वो स्लाइड्स हमें शेयर कर देना, पिछले लेक्चर की भी और इसकी भी काइंडली, ताकि हम साथ साथ इसको करते जाएं। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी आगे हैं मोहम्मद उबैद साहब। सर ये आपका क्या सवाल है? सर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्रॉप्स का वर्ड यूज हुआ था, काइंडली इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। क्रॉप्स, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है उबैद। सर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्रॉप्स का वर्ड यूज हुआ था। क्रॉप, I am unable to understand what you are saying. Please say it loudly. हेलो जी जी। सर हॉरिजॉन्टल का वर्ड यूज हुआ था। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब आप डिफाइन कर रहे थे, क्रॉप्स का वर्ड यूज हुआ था, वो काइंडली बता दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये होती है कि जब एक ही ग्रेड और एक ही लेवल के रैंक के लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाती है। वर्टिकल ऊपर से नीचे, प्लीज, वर्टिकल जो है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जो ये वर्टिकल कहलाती है कम्युनिकेशन। आपकी टॉप लेवल हायरार्की नीचे लेवल तक जो कम्युनिकेट करती है वो वर्टिकल कहलाती है। वर्टिकल की दो किस्में हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। जब आप कोलीग्स सारे ग्रेड 16 के हैं, जब आप आपस में बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगी। तीसरी किस्म है इसमें डायगोनल, जिसके अंदर टॉप मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट से जब डायरेक्ट बात करती है तो एक तिरछी जो है, इसका डायगोनल का मतलब है तिरछा होना। तो सारे चैनल्स बाईपास करके जब आप ओरिजिनल सोर्स के ऊपर आके बात करता है, एक डीजी या एक एजी बात करता है तो वो डायगोनल कहलाएगी, बाकी चैनल को पास करके आएगी। इसमें बाहर से भी लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसको तिरछी कम्युनिकेशन का नाम भी दिया जाता है, लेटरल कम्युनिकेशन का नाम भी दिया जाता है। थैंक यू सर। जी रुबैत, और कोई? थैंक यू। सुहेल सर। वालेकुम जी। सुहेल साहब। सर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर ये होता है कि उसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं कि हम जिस लेवल पे काम करते हैं उसमें एक सीएसपी ऑफिसर एक रूम में बैठा होता है, वो पूरे दिन में बिल्कुल नहीं चाहता कि वो रूम से बाहर आ जाए और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके उसके मुताबिक वो एक्शन ले सकें। इवन कि अगर पूरे मन में वो 2 दिन भी वर्कआउट को ऑब्जर्व कर ले कि किसको क्या मसला आ रहा है, क्योंकि वो उसने डायरेक्ट डिसीजन उसी नहीं करना होता है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर का सबसे बड़ा मसला ये भी है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज विद द सीएसपी ऑफिसर वो बहुत कम है। मैं आपके साथ 200% इत्तेफाक करता हूं। हमारे अंदर यही बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि सीनियर मैनेजमेंट अपने जो सबऑर्डिनेट लोग हैं उनके साथ प्रॉपरली उनको एड्रेस नहीं करती, उनकी बात नहीं सुनती, और बहुत सारे गिले शिकवे जो हैं वो मैंने अपनी उस जो वर्टिकल है लाइन उसके अंदर मैंने दिए हैं। आप उसको अगर पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस थिंग कि हाउ सक्सेसफुली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग while in government sector
हमारे जो है वो बात की सुनवाई नहीं होती। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है कि कोई सीएसपी ऑफिसर जो है वो नीचे वाले और की सर बात दूसरा सुनने को तैयार नहीं होता। सर और इसमें दूसरा जी सर इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर ये होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो सीएसपी ऑफिस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो ज्यादातर रिलेटेड इनका एक्सपीरियंस नहीं होता या रिलेटेड एजुकेशन नहीं होती, उसको समझ आते हुए या डिसीजन मेकिंग करते हुए वो 60 तक पहुंच चुका होता है बजाय कि वो डिसीजन ले सके। उसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अंडरस्टैंडिंग में बड़ा मसला होता है, हर 2 साल बाद या 1 साल बाद उसकी मूवमेंट होती है, बल्कि वो अकाउंटेबल नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं होती। दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, दे अंडरस्टैंड, उनका नॉलेज भी होता है, लेकिन एक गैप जो पड़ा बीच में आता है, एक वाइड गैप होता है सीएसपी ऑफिसर्स और आर्म स्टाफ के अंदर। तो वो अब मैं चूंकि खुद उन पोजीशंस पर रहा हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छा अंदाज़ा है। मैंने काफ़ी हद तक इसके ऊपर कोशिश की कि मैं मेरे दरवाजे जो हैं सब लोगों के लिए खुले हों। whosoever has any problem he can come to me directly। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। वो उन तक आने के लिए एक बड़ी मुश्किलात होती हैं सुबार्डिनेट स्टाफ को, और वो सही अपना मकसद ना बयान कर सकते हैं और ना अंदर बैठा हुआ जो सीएसपी ऑफिसर है वो उसको एड्रेस करना चाहता है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रही है और मेरे ख्याल रहेगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि 90% सीएसपी ऑफिसर जो हैं दे डोंट पे हीड टू द सजेशंस और प्रपोजल्स ऑफ द लोअर स्टाफ। हमारे प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं। ये सिर्फ ऑडिट डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये तमाम महकमों के अंदर जहां भी सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं दे कंसिडर देमसेल्फ ए हायर मखलूक। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये खत्म हो जाना चाहिए। ये अंग्रेजों के टाइम में तो था, लेकिन अब हमने 74-75 साल से हमने अपने अंदर भी पाल लिया है, और इसको हम जब तक रिमूव नहीं करेंगे हमारे पब्लिक सेक्टर के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। तो बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। ये फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ द सीएसपी ऑफिसर्स। थैंक यू जी। एनीबॉडी एल्स? अहमद मीर साहब जी फरमाइए। सर वालेकुम सलाम। ऊंची आवाज में आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी साथ बताते जाइए। सर जी गिलगित से सर। जी जी। सर जी मेरा जो क्वेश्चन है ये खैर लेक्चर से रिलेटेड नहीं है सर, माजरत के साथ। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स के साथ हमें एक दूसरा सब्जेक्ट भी ऑफर है ना सर, बिजनेस इंग्लिश के नाम से सर। जी जी। तो इन दोनों के पर्पज सेम नहीं है सर जी, दोनों को मतलब पढ़ने से क्या फायदा होगा, और फिर इनको थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करेंगे सर जी इनकी इम्पोर्टेंस पे सर। मैंने आपको आज इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मैंने चीजें बताई हैं सर। ये चीजें जो हैं ये आप इनमें से गुजरेंगे जब, तो आपको मैंने बड़ी डिटेल में ये चीजें शेयर आप लोगों के साथ की हैं। जी जी सर जी तो आप इसको ठीक है। और दूसरी बात आपने की है कि बिजनेस इंग्लिश के अंदर भी यही है जी सर, दोनों के अंदर जो है वो कॉमनलिटी पाई जाती है। ये सर, ऑलमोस्ट 90% चीजें एक ही हैं सर, विद फ्यू एक्सेप्शंस कि उधर थोड़ा सा सिलेबस बिजनेस इंग्लिश के अंदर ज्यादा है सर। बाकी ये ओवरलैप कर रही हैं चीजें। अगर आप बिजनेस इंग्लिश में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो शायद अगले लेवल के ऊपर, अगले जो लेवल 3 है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसके अंदर आपको आसानी भी हो जाए। और दिस इज वेरी इफेक्टिव वे टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू टू द अदर्स, और आपको नई नई चीजें इसमें मिलेंगी जो कि आपको नॉट ओनली इन योर ऑर्गेनाइजेशंस बट इन योर पर्सनल लाइफ भी आपको ये हेल्प करेंगी कि हाउ टू इम्प्रूव योर इमेज। इट इज़ वेरी गुड सब्जेक्ट, और इसको बड़े ज़रा इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िएगा, आपको इसके बहुत से फ़वाइद जो हैं वो मिलेंगे। थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया सर जी। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर जी। और कोई साहब? 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड्स। रजा अदरीस साहब जी। रजा
वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। सर जी वो स्लाइड सर शेयर नहीं हो रही सर, काइंडली लेक्चर कैंड पे अली साहब है एडमन जो कराची के, उनको कर दिया करें। इस तरह मैनेजमेंट काउंटिंग ही करते हैं, शेयर फौरन बाद आ जाती है, मतलब 6 बजे के बाद स्लाइड्स आ जाती हैं। आप भी काइंडली सर शेयर कर दीजिए। जी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे लेक्चर की स्लाइडें भी आपको वो दे दिया करें। मैं रिक्वेस्ट कर थैंक यू देता हूँ। पिफा हेड ऑफिस में अली साहब जो हैं, अगर वो सुन रहे हैं कहीं बैठे हुए, तो प्लीज शेयर माय स्लाइड्स विद द पार्टिसिपेंट्स सो दैट दे मे गेट बेटर रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशन। तो आप इनको मेरी रिकमेंडेशन है कि इनको स्लाइडें शेयर कर दें आप। Recording जी stopped. ठीक है सर, अली सर वो आपसे रब्ता कर लेंगे सर, वो आपसे ले लेंगे जी स्लाइड्स भी, ठीक है सर, जी और ठीक ग्रुप हो में भी गया, शेयर कर ठीक। लेंगे। जी ठीक हो गया। एनी अदर Recording क्वेश्चन? in progress. जी और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम कंक्लूड करें। उल्फत अब्बास ने क्वेश्चन पूछना और? अस्सलाम जी वालेकुम उल्फत। सर। वालेकुम सलाम। सर अभी मेरे भाई कलगीत से बात कर रहे थे, तो शायद वो अपना क्वेश्चन ना सही तरह से समझा नहीं सके। वो ये जी कहना जी चाहते थे कि जब हमने बिजनेस इंग्लिश पढ़ ली है सेम सिलेबस के साथ, हमें बीसी क्यों पढ़ाई जा रही है? मतलब एक ही सब्जेक्ट है, एक ही तरह के हैं, तो दो लेवल में हमें दो तौर पे पढ़ाई जा रही है। मतलब एक ही सब्जेक्ट कर दें इसको, अगर आइंदा कोई भी इस तरह का मैनेजमेंट डिसीजन हो। आप तो चूंकि उसके हिस्सा रहते हैं, तो आप इनको सजेशन दें कि सब्जेक्ट को एक कर दें, इसके बदले कोई और सब्जेक्ट हमें पढ़ा दें। जी आपकी ये प्रपोजल जो है ये उनको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये तो एक्चुअली हेड ऑफिस ने इसके ऊपर जो एक्शन लेने हैं, मुझसे वो राय मांगेंगे तो आई विल गिव देम कि ये ओवरलैप ना करें, एक ही जगह इसको कर दें ताकि लोग जो हैं इसको डुप्लीकेशन उनकी ना हो। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप अगर दोबारा भी पढ़ लें इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और बिजनेस इंग्लिश के अंदर इसका सिलेबस जो है वो ज़्यादा है। यहाँ बहुत ब्रीफ वे में आपको बताई जा रही हैं चीज़ें। अगर मैं आपको बिजनेस इंग्लिश के अंदर ये चीज़ें पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके साथ। वो नहीं डिटेल्ड सर, ऐसे सिलेबस है। कोई नहीं ये सर, है हर्ज कोई नहीं है माशाल्लाह, पढ़ने में हमें इंशाल्लाह दोबारा पास कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि उस टाइम को हम यूज करके कोई और बेहतर एक और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा नहीं सकते नहीं हैं नहीं, बेहतर मेरा तरीके ख्याल से। है कि वो मैनेजमेंट ने अगर कुछ रखा है सिलेबस को, कॉमन कंटेंट्स रखे हैं, तो डेफिनेटली उनके जहन के अंदर कोई और को पॉइंट होगा जिसके बारे में तो मैं फिल वक्त कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दे माइट हैव इन देयर माइंड्स कि इनको इनमें से दोबारा फिर गुजारा जाए ताकि ये अच्छे अंदाज से इसको कर सकें। तो बहरहाल थैंक यू सर, आपका थैंक यू आपका वेरी मच। सजेशन जो है वो उनका को पहुंचा देंगे। एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन? जी जी फरमाइए, रेज योर हैंड। जी जफर खान। जी जफर खान। आई थिंक लाहौर के अंदर ईशा की अजान को काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने भी नमाज़ पढ़नी है, लाहौर वालों ने नमाज़ पढ़नी है। तो अगर हमें इजाज़त है कि हम क्लोज कर दें इसको। वी आर लेफ्ट विथ 3 मिनट्स। 3 मिनट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़। कामरान सुल्तान, क्या सवाल है आपका जनाब? कामरान सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कामरान बात कर रहा हूँ एजीपीआर कराची से। सर ये मालूम जी करना था, ये स्लाइड्स जो शेयर होंगी किस ग्रुप में होंगी, क्योंकि सर ये हर स्टेशन के ग्रुप अलग हैं। हाँ ये भी आपका एक सवाल जो है ये ठीक है। ये सर अगर आप मैं अभी कर दें तो बेहतर होगा, अगर आप चैट में अगर कर देंगे तो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। Recording stopped. मेरा ख्याल ये है कि शायद ऐसे ना हो पाए। बहरहाल आपको 1-2 रोज में ये पहुंच जाएंगी। मैं हेड ऑफिस में बात करूंगा कि आप वो जो है ये स्लाइडें जो हैं वो शेयर कर दें। सर ये है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का सब स्टेशन का एक ही ग्रुप है,
लाहौर हो, कराची हो या इस्लामाबाद हो, सबका एक ही ग्रुप है, उसमें शेयर कर लेंगे। अगर किसी को इंडिविजुअली भी चाहिए होगा तो सर वो भी शेयर कर लेंगे। जी सर हम बिल्कुल ऐड नहीं ठीक है है। उसमें। इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि आपको भी शामिल कर लिया जाए। सर तमाम चलें स्टूडेंट्स को कोई शामिल करा जाए काइंडली। जी कराची से ठीक है, आपको भी शेयर कर लेंगे। अब कराची हेड हाँ आपको शामिल करके तो आप फिर आगे फिर करते जाइएगा। वैसे आप लोग मेरे वो नोट्स तो पढ़ ही रहे होंगे जो कि Recording in progress. पब्लिक फाइनेंस के। कामरान सुल्तान पढ़ रहे हैं कि नहीं? और सर वो सब्जेक्ट मैंने अभी लिया नहीं है, सिलेक्ट नहीं करा सर। आपने सर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। अच्छा तो जैसे वो शेयर हुए हैं वैसे ये भी शेयर हो जाएंगे तो आपका मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी एनीबॉडी एल्स? ये तो बहुत लोग हैं अभी सवाल पूछने वाले। मेरा ख्याल है ये टाइम हमें बढ़ाना पड़ेगा इसका। जी फरमाइए। जी बोलिए जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी मोहम्मद जफर खान बोल रहा हूँ सर, एडीपी लाहौर से। क्या हाल है सर, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। सर जी मेरी एक अर्ज थी छोटी सी, एक वो कह ले, रिक्वेस्ट कह ले, सजेशन कह ले सर। ये मोस्टली कोर्स हमने पढ़ा हुआ है सर लेवल 2 में सर। अगर हम नेक्स्ट बढ़ जाएं जिसका कोर्स वेट भी ज्यादा है सर उस पोर्शन का, जो नेक्स्ट प्रेसीज है या ड्राफ्टिंग वगैरह के बारे में, उसको अगर सर इस कोर्स को जरा हम जो इस पोर्शन को थोड़ा एंड पे कर लेते तो सर फिजिबल ना होता, जैसे अब आप कहें सर। थैंक यू। सफर ये चीज जो है, ये आप इधर क्लास ले रहे हैं ना लाहौर कैंपस में? जी सर मैं ले रहा हूँ। हाँ आप ले रहे हैं क्लास तो कल मेरी क्लास है पब्लिक फाइनेंस की, उसमें अंदर आएंगे आपके नहीं आएंगे? सर मैं कल लीव पे हूँ काइंड सर, जरा मैं घर चला गया था एप्लीकेशन में सर। अच्छा चले मंडे कोई को नहीं। इसको एड्रेस करते हैं। आपका अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको ये इंश्योर कर दूं कि मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा। और मैंने जो 7 पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन है वो भी साइड बाय साइड चला रहा हूँ। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आपका कुछ और एरियाज इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, तो 3 एरियाज जो हैं वो एक टाइम के ऊपर मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपकी ये मेरा ख्याल है कि जो प्रपोजल है अच्छी है, मेरे जहन में है, और मैं इसको एड्रेस भी कर रहा हूँ और मजीद इसको मैं डिटेल में इसको करूंगा एड्रेस। Recording stopped. सर नेक्स्ट क्लास के टाइम हो गया सर, काइंडली अगर आप वाइंड अप कर ले तो सर। नेक्स्ट क्लास जो है जी ठीक है, ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। आपका कोई सवाल रह गया है तो हम परसों हमारा लेक्चर है हफ्ते वाले दिन Recording in 6 से 9 progress. बजे, तो उसके अंदर मैं एड्रेस कर सकूंगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा कि तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हेड ऑफिस से आई है कि जी हम अगला लेक्चर हमारा शुरू होने वाला है, तो इजाज़त दें मुझे भी। थैंक यू वेरी मच। हम इंशाल्लाह परसों फिर मिलेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। Recording stopped.